Um, okay, so our guest has joined the meeting, so now we can start our session. So, am I audible to everyone? Yes. Okay, okay, okay. So, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के सेशन में हम हाउ टू टेक इंटरव्यू इंटरव्यू कैसे लिया जाता है स्टोरी टेलिंग के स्किल के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. और हमारा मोटिव our team emphasis has conducted this contest because we want to develop the skills of the various skills of the students and to give them a global platform. स्टूडेंट्स के कुछ इंटरेस्टिंग स्किल्स होते हैं जिनमें इंटरेस्ट होता है, उस स्किल को हमें डेवलप करके उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है. और इसीलिए हमने ये कंपटीशन ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है. और इस सेशन में हम जैसे कि कहा मैंने कि आप इंटरव्यू कैसे लिया जाता है इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले. सो इंटरव्यू और स्टोरी टेलिंग ऐसी स्किल है जो कि बस आपको इस कॉन्टेस्ट तक की सिर्फ लिमिट नहीं है, ये आपको आगे चल के लाइफ में भी काम में आ सकती है. क्या पता आप में से कोई टीवी जर्नलिस्ट टीवी रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है. सो सेशन शुरू होने से पहले सो आई वुड लाइक टू वेलकम अवर टुडेज गेस्ट, अवर मेंटर, a storyteller and interviewer who has motivated almost thousands of students and entrepreneurs, and he is the CEO of Abhiprerna HE World Talk. So I would like to welcome the most charming person, Mr. Ayush Kesri. Hello. Thank you so much. I would like to apologize for being late here, and I like there was a big power cut in my area, and phone, my laptop, and everything was just shut, and I was not able to connect. So I know you people are waiting from since 11:11. So I'm Yes, really yes. sorry for each one of you for being late and like being present here. And I'm looking forward for the session. I believe we'll be learning today a lot of things, and I believe Aniket is doing awesome work. He is trying to do something at very young age. He is saying at 11. Now he's in class 12th. He is taking such initiative. It's really remarkable. And I congratulate your parents, Aniket, Prashant sir, and your mother, your brother who was supporting you. And I got to know that you initiated in class 7 itself, right? So you were telling me that you initiated this idea in class 7 itself. Yes, sir. Thank Having you. this idea of innovation, doing something for the society and the farmers, it's I can say it's remarkable. So I was not that prepared at say, class 7 days. Yes, I did something into service that way, but entrepreneurship was at that time. It was not the time. So I would like to congratulate you and your team for being so nice and doing so much of hard work and bringing so much of people together, learning and helping them to grow. And I'd like to thank all participants who were here and participated in this workshop. Looking forward for to learning from me. And I'm talking about like I really would like to apologize that I'm late today and I don't know why this happened today. I generally try to have my backup ready so that if electricity goes, I should have my laptop and phone charged. But yesterday I was working like to like 3 a.m. I was working to my project. So I'm able to charge my laptop, but electricity was gone. I thought in the morning it will be that I'll be making it possible. So I was waiting it. But still I'm there, and I'm really sorry for guys. I'm still feeling that why I'm late today. So thank you for joining it, and thank you for making it possible. I would like to request before I start, I'll make this session into Hindi, and as Prashant has requested, like Aniket has requested. Sorry, Prashant. I said Prashant sir. So Aniket has requested me to be in Hindi. I'll be speaking Hindi. But before I start, I want you to see your faces, who all are sitting here, and why you are sitting here, and what you want to learn from today. So I'll switch off my camera, and I want you to switch on your cameras. Please do switch on your camera so that I can see your faces. I can see who all are there. Yes, yes. Uh, please, participant, please on your camera so that sir can see you. Yes, yes.
There are a lot many students from students are from first to 12th class, and everyone is so much interested in. Sir, your mic is off. My mic is off. I want you, each one of you, to on your cameras. All of you. Good morning, sir. Can we take a screenshot, which we'll be using as a picture of this? Let's have a selfie mode, please. No, you Yes, need to yes. smile. Cheese. So, Aniket, are you taking the photo? Yes, yes. I have taken, sir. Okay, fine. Yes. How is your morning? कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? और ये उनको पता थंब दिखाना अच्छा लगा तो। अच्छा, तो मैं बहुत लोगों के फेस देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ मंथन को। मंथन कौन सी क्लास में है आप? Sir, I am in 11th class. 11th में है मंथन। मंथन कहाँ से हैं आप? I am from Yatman. कहाँ से? Actually, I am Aniket's friend. You are Aniket's friend. मतलब you city is nearby his city only, right? Yes, sir. Anjali Chavan, I can see a guy in red shirt. Yes, sir. A guy in red shirt, Anjali Chavan. Sir, I am Kshitij Chan. It's my sister at कहाँ से हैं आप? Yatman. कहाँ से? Yatman. अच्छा, I can see श्रेया। श्रेया कहाँ से हैं आप? Sir, I am from Pune. पुणे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th. प्रिया। Sir, I am from Nanded, class 7th. Class 7th? Priya, Yes. your headphone looks very pretty. Thank you, sir. I'll take a selfie with you with this headphone. Okay, like what all faces? Radhika Sarad. Radhika Sarad, you look very young, very young. Radhika Sarad. Yes, sir. Actually, his parts are, and he's actually in first standard who has participated in this contest. And he's looking so young. Class first we got to learn. This will be a great story for me today. I'll be making a lot of stories, I can tell you. And the stories will help me to brand myself very well. Okay, fine. So, can you see any other faces? I can only see screen faces. I which will are there. third standard. I am third standard. Third standard. Okay. So, what you like most to study? Which subject you like most? अनिकेत सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको? राधिका। मुझे लगता है there is a voice connection. प्रध्ययम छिछोरकर, मैंने अगर सही प्रोनाउंस किया है। कौन सी क्लास है आप? 7th. कहाँ से? Yavatmal. कहाँ से आप? Yavatmal. अच्छा, आपका टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। It has lot of colors and design. बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और निहारिका भी है। निहारिका कहाँ से है आप? I am from Nagpur. नागपुर। कौन सी क्लास में निहारिका? 7th. 7th. शीना जैकब कहाँ से हैं आप? Sir, I am K. Satram. कहाँ से हैं?
Sir, I'm from Nagpur. Aniket, can you see a few faces more so that you can recall their name? I can't see much faces here. हाँ सर, यस. Just a second. There is Mahendra Khedkar, Nitin Kadu, and Shabdali Deshmukh, Sheena Jacob, Okay. Vilas Digore, yes. Nitin has put off his phone. Harsh. Hi, Harsh. Hello, sir. हर्ष कहाँ से हैं आप? Sir, I am from Nagpur. कौन सी क्लास में हैं? Sir, 11th. अच्छा 11th में. I'll go to Priya and I'm starting my session. मैं अपना सेशन शुरू कर रहा हूँ और प्रिया के पास चलेंगे. प्रिया का हेडफोन बहुत प्यारा है. अच्छा, शीतल is also there. शीतल देशमुख. शीतल कैसी है आप? So myself Shabdali, I have joined from the different device. Okay, might be your family. Yeah. Okay. तो कहाँ से हैं आप शेफाली? I'm from Amravati. Amravati. It's in south. Okay. It's a beautiful city. No. It's in Maharashtra. That's the different Amravati. Oh, so that's a different. Okay. तो कौन सी क्लास में हैं आप? I'm right now in 12th. चलिए मैं सेशन को शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. वैसे भी मैं बहुत रेडी हूँ. थैंक यू फॉर बीइंग नाइस नाइस यू ऑल ऑफ यू एंड आपने अच्छा कैमरा ऑन किया. बहुत सुंदर लग रहा है सभी लोग. सबसे सुंदर लग रही है राधिका सरद जो छोटा सा है. बहुत छोटा है मुझे लगता है. क्लास 3 का बच्चा है वो. एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू एंड प्रिया. प्रिया आप कौन सी क्लास में हैं? 7th में ना? 7th में हैं? Yes, sir. ये हेडफोन किसने गिफ्ट किया आपको? सर हमने ही दिए. अच्छा, आपने ही खुद किया है गिफ्ट. Yes. आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, sir. बैकग्राउंड में क्या है आपके? सर ग्रेनाइट है. ग्रेनाइट है. अच्छा, मुझे बताइए प्रिया कि आपने कभी अपने स्कूल में किसी को पीटा है? क्या? किसी को थप्पड़ लगाया है स्कूल में? हाँ, एक बार लगाया है. किसको लगाया है और कब लगाया है? वो एक लड़का मेरे हाइट पर गया था तो मैंने उसे एक खींच के मारी थी. तो उसने कभी मुझे वैसा नहीं बोला. क्लास में कोई नहीं बोलता है. लड़का ने क्या किया था? हाइट पर गया था. अच्छा, तो हम एक मारे थे. एक मारा. जोर से मारा था धीरे से मारा था? जोर से. अच्छा, उसके बाद किसी को मारने का मन किया आपको? कोई फिर यही नहीं किया तो फिर नहीं मारा. फिर किसी ने हिम्मत नहीं किया? नहीं. आपको सबसे अच्छी टीचर कौन लगती है? हमारे मैथ्स के सर. क्यों? वो अच्छा पढ़ाते हैं और हंसाते भी हैं. अच्छा, हंसाते भी. क्लास में वीडियोस भेजते हैं. अच्छा, हंसाते हैं और वीडियोस भेजते हैं. कैसे हंसाते हैं वो? मतलब वैसे जोक्स बोलते कभी कभी. जैसे? सॉरी सर, वो मैथ्स के नहीं, हिंदी के सर है. अच्छा, हिंदी के सर है. अच्छा, हाँ. हिंदी के सर कैसे जोक्स भेजते हैं? मतलब भेजते नहीं. अब क्लास चालू हो तो किसी लेसन पर ऐसे ये देखो ऐसा, तो ऐसे मतलब कि हंसाते हैं. हाँ. ठीक है. प्रिया, मुझे लास्ट क्वेश्चन है आपसे. आपके मम्मी या पापा कौन अच्छे लगते हैं आपको ज्यादा? दोनों भी. नहीं, ज्यादा एक बता. पापा क्यों? क्योंकि वो मुझे ज्यादा मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं बोलते. ज्यादा कुछ नहीं बोलते? मतलब आपको डर लगता है कि आप थप्पड़ लगा देंगे उनको? पापा को डर लगता है कि आप थप्पड़ लगा देंगे? नहीं. अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ. क्या किया ब्रेकफास्ट में आज? मम्मी ने स्प्राउट्स किए थे.
अच्छा स्प्राउट्स किया है आपने। चलिए हम अनिकेत के पास जाते हैं। अनिकेत होस्ट हैं आज के सेमिनार की। और अनिकेत बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। मुझे बताइए आपने कभी किसी को प्रपोज किया? नो सर। सच बताना है। यस सर, आई हैव नेवर। अच्छा पापा भी बैठे हैं इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे? नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब आपने कभी किसी के लिए फील कुछ नहीं किया? No sir, I have done for my parents and for my society, but Not for a girl. no. आई होप मैं समझता हूँ कि पापा हैं यहाँ इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। चलिए अनिकेत मुझे बताइए आपने जब अपना ये सेशन शुरू किया, जब आपने ये कंपनी शुरू की, तो आपने एक प्रॉब्लम देखा फार्मर्स के प्रति, है ना? Yes sir. That has only inspired, उसी ने आपको इंस्पायर किया कि आप ये काम करें, या आपको भी कुछ करना था समाज के लिए, कुछ हेल्प करना था, उसने इंस्पायर किया? उस प्रॉब्लम ने या आपकी खुद के सेल्फ एंथुसियाज्म ने? सर वो प्रॉब्लम एक वन ऑफ द रीजन, मतलब उसके वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। बट सेकंड रीजन ये था कि व्हेन आई वाज इन 4th and 5th स्टैंडर्ड, मैं जब 4th और 5th में था तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट ऐसा मुझे सीखना था। बट बिकॉज मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, सो वो सब रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल नहीं थे। और 18+ ऐसा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 18+ बच्चों को ही ये सब कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। और उसके बाद फिर ऑनलाइन मैंने देखा कि वी कैन लर्न दिस थिंग्स, और वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट ऑनलाइन भी सेम क्राइटेरिया था कि 18+ स्टूडेंट्स। और तब मैं सर 10 to 12 ईयर्स का था। सो पापा के मेल से मैंने रजिस्टर किया। पापा ने कहा मेरे मेल से रजिस्टर कीजिए। मैंने वहाँ पे फिर रजिस्टर किया। फिर वहाँ से मैंने ऑनलाइन सब कोर्सेज वगैरह कंप्लीट किए। सो यहाँ तक फिर उसके बाद फिर मेरे पापा ने हमने मिलकर एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया बैंगलोर में, जहाँ पे मेरा एज ए वेबसाइट डेवलपर सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद सर मैंने उस वक्त सोचा कि मुझे स्टाइपेंड भी मिलने वाला था उस इंटर्नशिप में। सो उस वक्त मैंने और मेरे पापा मतलब ऐसे बैठे थे। मैंने पापा को पूछा कि मैंने एक्चुअली क्या अचीव किया है। सो फिर उस वक्त मुझे समझा कि जो प्रॉब्लम मैंने नई चीजें सीखने के लिए फेस की थी, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि बिकॉज आप 18 बिलो हो, आप ये सब चीजें नहीं सीख सकते। सो बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरे से जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये कोर्सेस अभी सीख सकते, क्योंकि जहाँ से मैंने ये सब सीखा था वेबसाइट डेवलपमेंट, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका चेंज कर दिया था कि नाउ दैट स्कूल स्टूडेंट्स कैन आल्सो लर्न दिस थिंग्स। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट I will work for the society and provide the global platform and to the students so that they can come do their skills. So you established a new story, and I hope Atal Innovation Mission might have inspired from your story, kind of like जिसने Yes sir, yes. आज स्कूल में इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि Yes, वेबसाइट डेवलपमेंट क्लासिक्स के बच्चे भी सीख सकते हैं, and they're giving an opportunity. yes sir. Thank you Aniket for taking an initiative. Difference पता क्या होता है? Once you think of, आप जब सोचते हैं कुछ नया करने का, समाज में कुछ बदलाव लाने का, ऐसा हर कोई सोचता है, मैक्सिमम लोग सोचते हैं। डिफरेंस क्या है कि आप एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। That's very important. और many a times हम केवल सोचते रहते हैं, हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन आप में उनमें से नहीं है, आप एक्शन लिया आपने और आपने कुछ इनिशिएट किया। चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ। ऐसे में सेशन मैंने ऑलरेडी जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया था तब से ही शुरू कर दिया था। मैंने सवाल तब से पूछने शुरू किए थे। मैंने सबको बोला कैमरा ऑन कर लीजिए, मैंने बोला सेल्फी ले लीजिए, मैंने बोला आपको अपने बारे में बताइए। तो मैंने सब कुछ वही कर रहा था जो मुझे सेशन में देना है। अब देखिए जब इंटरव्यूअर जब वो इंटरव्यू लेना चाहता है तो उसका मोटिव क्या होता है? वो किसी की इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है? वो किसी का साक्षात्कार क्यों लेना चाहता है? किसी के बारे में किसी को क्यों दिखाना चाहता है? Why did I ask you to on your camera? क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है। आप जब भी इंटरव्यूज लेंगे, हो सकता है कि माइट बी ये पॉडकास्ट के लिए भी हो सकता है, वो आर्टिकल राइटिंग भी हो सकता है, इट माइट बी ऑन अ प्रिंट न्यूज पेपर के लिए भी हो सकता है, लेकिन वी अंडरस्टैंड दैट वीडियो हैज अ रोल टू प्ले। Why I asked you to on your camera and talk to me on camera is basic, ताकि camera is somewhere where we may feel hesitant while talking to a person. When you talk to for a TV journalist, you need to watch the camera rather than watching a journalist.
मेरे टाइम्स सुनो, अर्लियर टाइम्स, अभी तो क्या होता है कि बहुत सारे कैमरास होते हैं, तो आपको केवल गेस्ट को फोकस करना है या आप जर्नलिस्ट को फोकस करके देख सकते हैं, कैमरा आपको फोकस कर लेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देयर हैज टू बी लाइक वेरी वन कैमरा एंड उसी कैमरे को देख देख के लोगों को बोलना पड़ता था। तो आप कई बार जैसे मान लीजिए मैं आप सामने बैठा हूँ, मैं आपको ना देख के मैं कैमरे को देख रहा हूँ, अच्छा आप बताइए, आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा, मैं आंसर ऐसे दे रहा हूँ, नहीं ऐसा होता है। जैसे आपने पूछा सर आप कहाँ से है, मैंने बोला मैं दिल्ली से। अरे आप कैमरा इधर है, आप इधर है, मैं इधर देख के बोल रहा हूँ। क्योंकि कैमरा उस समय एक इशू था कि कैमरा को देख के बोलना है, और क्योंकि आप जब कैमरा देखें तो आपको लगना चाहिए कि आपको देख के मैं बात कर रहा हूँ। दैट टाइम दैट हैज एन इशू। अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, वी हैव मल्टी कैमरास एंड मल्टीपर्पज कैमरास जो इट कैन तुरंत आपकी तरफ फेस कर सकते हैं, आपको वॉच कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यू क्यों लेते हैं, जिसके लिए हम आज आए हैं, और स्टोरी टेलिंग के लिए कितनी बात की तो उससे हम बात कर लेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं। कोई सवाल का आंसर देना चाहेगा कि हम इंटरव्यू क्यों लेते हैं किसी की? Just to recognize how the person is, or to just appoint me kind of a job. उसके बारे में जानने के लिए वो इंसान कैसा है। हाँ, और So to know him more, to know his qualification or her qualifications, and how is their behavior with others. Okay, yes. Harsh, you want to speak something? और किसी को कुछ बोले? इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, क्यों लेते हैं इंटरव्यू? क्यों लेते हैं? चलिए ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा लोग हेजिटेंट है, मैं बताता हूँ। देखिए, इंटरव्यू जब लेने की बात करते हैं हम, तो इंटरव्यू बहुत सारे हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि हम किस पर्पस के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। पर्पस डिसाइड करेगा कि मेरा इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होगा। पर्पस डिसाइड करेगा कि मेरे लेवल पे मुझे क्या करना है इंटरव्यू लेने से पहले। पर्पस डिसाइड करेगा कि मुझे इंटरव्यू जो लेनी है उसको कितने मिनट का या कितने टाइम का होना चाहिए। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस। जैसे मान लीजिए एक रिसर्च स्कॉलर है, एक पीएचडी का स्टूडेंट है, जब वो किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू लेता है या किसी फील्ड में जाके कोई सर्वे कर रहा है या फील्ड में जाकर के कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहता है जिसके लिए वो अपने क्वेश्चनायर लोगों से, आम लोगों से भरवाता है, तो उसका पर्पस केवल इतना ही है कि जो उसने क्वेश्चनायर बनाए हैं, जो उसने 10-20 क्वेश्चन बनाए हैं, उस क्वेश्चन का केवल आंसर उससे मांगे। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका सेक्शन कौन सा है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप घर का एड्रेस क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, क्या आप खाना खाने में क्या अच्छा पसंद करते हैं, कौन सा कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। तो ये सारे सवाल जो है अगर कोई पूछ रहा है, उसका पर्पस हो सकता है रिसर्च हो और वो आपके बारे में या आपके बिहेवियर के बारे में जानना चाहता है। तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच विल डिसाइड कि आपका इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसा होगा। अब एक टीवी जर्नलिस्ट है जिसको एक किसी शख्सियत की इंटरव्यू लेना है, किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना है ताकि वो समाज को ये दिखा सके कि वो इंसान कैसा है। वहां पे पर्पस क्या है, आप किसी इंसान के बारे में बात करें, इंडिविजुअल, उसके काम के बारे में या उसके इफेक्ट्स के बारे में जो उसने किया है सोसाइटी को। तो उस समय पर्पस जो है आपका उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई करना है या उस व्यक्ति को क्वेश्चन करके कटघरे में खड़ा करना है कि उसने गलत किया है या सही किया है। वो पर्पस है। हो सकता है एक पर्पस आपका ये हो कि आप अपने एरिया को ज्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हो। मान लीजिए आप कहीं नए घर से शिफ्ट हुए हो, नए शहर में आए हो और आपको लगता है कि मैं इस एरिया के लोगों को जानूं, तो आपका पर्पस हो सकता है कि मैं इस एरिया के बारे में जानूं, ये एरिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की भाषा कैसी है, यहाँ के खान पान कैसी है। तो मैं वो पर्पस मेरा एरिया को जानना है। तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे भी ये पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इंटरव्यू कौन से पर्पस से लेना है। आप इंटरव्यू किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, चाहे अपने मम्मी पापा का हो, चाहे अपने भाई बहन का हो, चाहे मैंने आप लोगों का भी तो इंटरव्यू ही लिया अभी आपसे, आपने सवाल पूछे,
मैंने इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। वो कितना रेलिवेंट है वो तो वो सामने वाला इंसान आंसर करते हुए बताएगा कि वो कितना रेलिवेंट है सवाल जो आपने पूछा है। लेकिन आपने जो सवाल पूछने शुरू किया, इट हैज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये नहीं कि एक सवाल पूछा तो इंटरव्यू हो जाता है, हाय हेलो किया तो इंटरव्यू हो गया। अगर इसके पास सेट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब इट हैज सेट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इफ यू हैव 20 questions, if you have 25 questions set of, if you have 10 set of questions, it is more than 5 minutes or 10 minutes, you can engage a person। तो उस समय क्या होगा, वो इंटरव्यू कहला सकता है। तो पर्पस डिसाइड करता है इंटरव्यू को, इंटरव्यू का टाइम पीरियड डिसाइड करता है इंटरव्यू को। शॉर्ट इंटरव्यू कैन आल्सो बी पॉसिबल, जैसे आपने मेरा नाम पूछा, मैंने आपका नाम पूछा, आपने पूछा कहाँ रहते हैं, मैंने बोला मैं यहाँ रहता हूँ, आपने बोला कहाँ रहते हैं, मैंने बता दिया, आपने बता दिया यहाँ रहते हैं। मैंने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, आपने बता दिया, मैंने बता दिया मुझे क्या अच्छा लगता है। वो सारी बातें इंटरव्यू के अंदर आ जाती है, तो वो भी इंटरव्यू ही लेते हैं। लेकिन पर्पस क्या था उस टाइम आपका पर्पस था कि आप उस व्यक्ति को जानना चाहते थे। लेकिन जब हम टीवी इंटरव्यू की बात करते हैं ना, जब हम प्रोफेशनल इंटरव्यूज की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यूज लेना है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, और उसके बारे में लोगों को बताना है, समाज को नोटिफिकेशन देना है, उस समय व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा रिसर्च करें। किसी व्यक्ति का जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ ले। जैसे मान लीजिए मुझे अनिकेत का इंटरव्यू लेना था, ये प्रशांत सर का इंटरव्यू लेना है, तो इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंटरव्यूअर कि मैं जिस इंसान का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ उस इंटरव्यू इंसान के बारे में थोड़ा पढ़ लूँ। कहाँ से मिल सकता है इन्फॉर्मेशन, मुझे गूगल से मिल सकता है, मुझे न्यूज पोर्टल से मिल सकता है, मुझे उनकी किताबों से मिल सकता है, मुझे उनके फेसबुक अकाउंट से मिल सकता है, मुझे उनके रिलेटिव से, उनके पेरेंट्स से मिल सकता है। तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा इंसान है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों करता है, वो ऐसा कोई काम क्यों कर रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है बिफोर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन। बिकॉज वंस यू आर गोइंग देयर टू विजिट दैट पर्सन, और आप मुझसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, इफ यू कम टू एंड आस्क मी फॉर एन इंटरव्यू, आई वोंट गिव माय इंटरव्यू टू यू। रीजंस आर वेरी क्लियर। अगर आपको ही नहीं पता है कि मैं कौन हूं तो आप मेरे पास क्यों आए? तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप जिस पर्सन का इंटरव्यू लेने जा रहे हो वो पर्सन कौन है, वो क्या करता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका गांव क्या है, एंड आप वो इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को, समाज को कुछ दिखा सके, कुछ बता सके, कुछ हेल्प कर सके, है ना। तो पर्पस जो है आपका, और जानना हो सकता है उस व्यक्ति के बारे में जो लोगों को ना पता हो। जैसे मान लीजिए मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू लूँ, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता है, मैक्सिमम लोग जानते हैं शाहरुख खान को। मैं अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लूँ, अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि शाहरुख खान के बारे में सब जानते हैं, है ना, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो शाहरुख खान के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर वो मेरे इंटरव्यू में आ गई ना तो लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू जो आपने बनाया है या जो ले रहे हैं, वो पर्पस तो आपने डिसाइड किया कि किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है, आपने थोड़ी पढ़ाई भी कर ली, रिसर्च भी कर लिया, लेकिन कुछ नया नहीं आया उस इंटरव्यू में। वही बात रिपीट हुई जो ऑलरेडी उन्होंने और लोगों को बोली है। तो आपके इंटरव्यू में कुछ यूनिक नहीं था, कुछ नया नहीं था। तो आपके इंटरव्यू में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी और इंटरव्यू में ना हो, जो किसी और वीडियो में ना हो, जो किसी और जगहों पे ना हो, ताकि लोग आपके इंटरव्यू को इंटरेस्टिंगली देख सके। अब शाहरुख खान की कितनी बीवियां हैं, मान लीजिए शाहरुख खान बोले किसी इंटरव्यू मेरी 5 बीवियां हैं, दैट विल बी एन सरप्राइजिंग इंटरव्यू फॉर एवरीवन, क्योंकि शाहरुख खान की 5 बीवियां तो है ही नहीं। पहली बात, सबको पता है कि एक ही बीवी है, गौरी खान, कोई और है ही नहीं। शाहरुख खान बोल दे मेरे 8 बच्चे हैं, जबकि सबको पता है कि मेरे 3 ही बच्चे हैं। तो वो इंटरव्यू अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके वहां पे कुछ शेयर कर दिया है। ये दूसरी बात, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, वो बता दे आपके इंटरव्यू में कि मेरे पास 500 करोड़ का कर्ज है, जो लोगों को लगता नहीं हो सकता उनके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत रिच आदमी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर ये इंटरव्यू में ऐसा कुछ शॉकिंग न्यूज दे दे आपको, तो क्या होगा, आपके इंटरव्यू लोग वॉच करेंगे। तो आपके इंटरव्यू में पर्पस के साथ, थोड़ा रिसर्च के साथ साथ कुछ नया जरूर होना चाहिए। वो नया कैसे आएगा, वो आपके सवालों से।
आपके बिहेवियर से उधर क्या आप पूछ रहे हैं, कैसा आप उनका कनेक्शन है आपका, वैसा है। ये तो इंटरव्यू के फ्रेमवर्क की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जब हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अब कैसे बनाने चाहिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस? इंटरव्यू के क्वेश्चंस हमेशा लाइट टू टफ होना चाहिए, मतलब हल्के से मुश्किल की तरह। कैसे? जैसे मैं आ जाऊं और पूछूं, पहला ही क्वेश्चन अगर मेरा आपसे ये होता अनिकेत से, अनिकेत पहले जैसे मैं सेशन में आया हूँ, मतलब जैसे मैंने एंटर किया, कैमरा ऑन किया और आपने मुझे अलाउ किया और मुझे अनिकेत ने इंट्रोड्यूस किया, मैं अनिकेत से पहले सवाल ही पूछता, अनिकेत डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? अनिकेत आपने कभी किसी को प्रपोज किया? तो अनिकेत वुड हैव फील ऑफेंडेड, वेरी ऑफेंडेड, मतलब क्या कर रहे हैं सर, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो सर को नहीं करना चाहिए। तो आपका सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इंसान बहुत ऑफेंडेड फील करे वेरी इनिशियल में। तो पहले लोगों को कंफर्टेबल करना होता है आपके इंटरव्यू के छोटे छोटे क्वेश्चन से। जैसे मैंने सबको कंफर्टेबल किया आप लोगों को, आप कौन है, कहाँ से रहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ताकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। तब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने किसको थप्पड़ मारा। अच्छा, आपने आंसर भी दे दिया। फिर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आपने कभी किसी को प्रपोज किया है, आपने वो भी बता दिया, मतलब नहीं किया वो भी बता दिया, लेकिन आपने उस कंफर्टेबली उसको गलत नहीं लिया आपने कि सर ऐसा कैसे पूछ रहे। मैं पहले आके पूछता प्रिया से, प्रिया तुम थप्पड़ मारा है किसी को? प्रिया बोलता अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्यों मारने लगी किसी को थप्पड़। तो मतलब जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं, इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट टू हार्ड। अब आप क्योंकि जिसको जानते हैं ऑलरेडी उसके बारे में ये नहीं पूछेंगे आप अपने बारे में बताइए, राइट, क्योंकि आप तो उसके बारे में पढ़ के आए। अगर आप किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मुझे कैसे पूछ सकते हैं सर वेरी गुड मॉर्निंग, आपने मुझे मौका दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका घर बड़ा अच्छा है सर, बहुत अमेजिंग। मैंने आपकी लाखनी किताब पढ़ी थी, वो किताब जो थी ना सर, उसमें आपने एक पॉइंट कहा है कि लाइफ जो है ना वो बहुत स्मूथ नहीं हो सकती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने क्या किया, मैंने एक उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया, उनकी थोड़ी तारीफ कर दी, उनको थोड़ा प्लीज कर दिया, प्रेज कर दिया, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। जब तक सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो आपके सवालों का आंसर नहीं देगा ढंग से, वो आपको टालेगा, बोलेगा नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उसको कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। किसी का भी इंटरव्यू लेना है उसको कंफर्टेबल करना है। तो आपके सवाल पहले कैसे होना चाहिए, कंफर्टेबल जैसे, उसको कंफर्ट करने के लिए। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आप जो किताबें लिख रहे हैं वो कौन पढ़ेगा? ये टफ क्वेश्चन है बहुत। किसी के कोई राइटर है जो किताबें लिखता है, मैं उसको बोल दूं कौन पढ़ेगा, बड़ा ऑफेंडेड फील कर सकता है कि स्टार्टिंग में ही मेरे से पूछ रहा है कि मेरी किताबें कौन पढ़ेगा। लेकिन अगर उससे मैं इनिशिएटिव में ये पूछूं स्टार्टिंग में कि सर मैंने आपकी आखिरी किताब पढ़ी थी, किसने मोटिवेट किया सर आपको, वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन फॉर इट, वो बड़ा अच्छा बताएगा, अरे ये दिक्कत था वो दिक्कत था। सर आपकी जो कहानी है ना, वो कहानी कहाँ से लाई है आपने, डू यू रियली फील द कैरेक्टर इन लाइफ, मतलब क्या आपको एक्चुअल में कैरेक्टर दिखते हैं, कहीं कहीं आपने उसको देखा है, कहीं आपने उसको फील किया है, क्या आपने की कहानी में जो स्टोरी ली है वो कैरेक्टर वहां के है। तो पर्पस शुड बी हियर टू ग्लोरीफाई दैट पर्सन, टेक आउट समथिंग यूनिक इनटू दैट इंटरव्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो कंफर्ट होना चाहिए। पहले कंफर्ट के लिए आपने कुछ हल्के हल्के सवाल पूछने, धीरे धीरे फिर उसको हार्ड पे ले जाइए। फिर उससे पूछिए सर आपकी जो किताब आने वाली थी उसको तो मुझे लगता कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं आंसर नहीं क्यों नहीं पढ़ेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, पढ़ेगा पढ़ेगा, मैं तो वैसे ले जरूर पढ़ेगा। तो आप लाइट से टफ ले जाइए और फिर यूनिक की बात कीजिए। फिर उनसे पूछिए सर कोई नई किताब आने वाली है आपकी, सर ऐसी कोई किताब जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हो, सर आपको लगता है कि आपकी किताब में कोई मिरेकल किसी लाइफ इंस्टेंसेस में कुछ चेंजेस किया है। तो अभी मैंने 3 बातें डिस्कस की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, किसी भी इंटरव्यू का पर्पस बहुत पता होना चाहिए आपको कि उसका इंटरव्यू का पर्पस क्या है, आप वो इंटरव्यू कौन से पर्पस के लिए ले रहे हैं। दूसरा क्या है, आपको उस व्यक्ति के बारे में रिसर्च करना है, पढ़ना है थोड़ा कि वो इंसान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तीसरा क्या है कि आप जब इंटरव्यू ले रहे पहुंच रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, लाइट टू टफ, हल्के से मुश्किल होना चाहिए। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चंस हो गए स्टार्टिंग में तो वो सामने वाला इंसान आपको आंसर नहीं करेगा ढंग से, मे बी फील ऑफेंडेड एज वेल, मे बी आस्क यू टू रन आउट उसकी होम, बोलेगा दूर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो उसको कंफर्ट करना बहुत जरूरी है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ये 3 बातें तो हमने डिस्कस कर ली।
अब हम डिस्कस करते हैं सवाल कैसे होना चाहिए आप, और सवाल कैसे फ्रेम करेंगे आप, हाउ विल यू फ्रेम क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे आप। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। आप ये पता कीजिएगा कि इंटरव्यू किसके लिए ले रहे हैं आप, आपका ऑडियंस कौन है, कौन सी ऑडियंस कोई क्वेश्चन इंटरव्यू देखेंगे, कौन देखेगा ये इंटरव्यू, कौन पढ़ेगा ये इंटरव्यू। तो आपका ऑडियंस डिसाइड करेगा कि आपका सवाल क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनिकेत एक पर्सनालिटी है, अब अनिकेत के लिए मैं एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो अनिकेत का इंटरव्यू मुझे लेने के लिए मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस अगर यंग लोग है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है या हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट है, तो अनिकेत से मैं पूछूंगा ना इनोवेशन क्या किया अनिकेत ने और क्या कर रहे हैं। ज्यादा लोग मोटिवेट नहीं होंगे वॉच करने के लिए, लेकिन मैं अनिकेत से अनिकेत की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछूंगा, उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछूंगा या उसके ब्रेकअप के बारे में पूछूंगा। मैक्सिमम यंग लोग उसमें इंटरेस्ट हो करेंगे, क्यों? क्योंकि वो सेम फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इतना प्रॉब्लम हुआ होगा या उनको भी लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है। तो वैसे केस में क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है सामने वाले इंटरव्यू को वॉच करने के लिए। इवन आप खुद को वॉच करेंगे ना, आप अगर गाने में बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, आप वॉच करेंगे। यंग लोग खास करके 14 साल से 28 साल, मतलब 30 साल भी यंग लोग, 24 तो 40 साल भी लोग यंग है, तो 40 साल के लोगों को भी कंसीडर कर सकते हैं। वो सब लोग लव स्टोरी को ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब आफ्टर मैरिज यू माइट बी दैट हैव नो इंटरेस्ट, बट एटलीस्ट 14 से 24 साल और 14 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं और आप लव में हैं, लव कभी भी वैसे हो सकता है, तो आपको इस काइंड ऑफ इनसाइड स्टोरी आपको हेल्प करेगी। इसलिए आप हमारे फिल्मों को देख लीजिए, हमारे आसपास जो फिल्में बनती हैं वो फिल्में ज्यादातर इमोशंस पे होती है, लव स्टोरी ज्यादा होती है, और उनका टारगेट फोकस यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंग लोग होते हैं, ताकि उनको आकर्षित कर सकें। वही जगह फिल्म देखते हैं। बुढ़े लोग कहाँ जाते हैं फिल्म देखने, बहुत कम बुढ़े लोग जाते हैं फिल्म देखने। तो उनको पता है यंग जनरेशन ही मेरी टारगेट है, तो उनको जो इमोशन टच करता है, उनको जो हिट करता है, उनको जो चीज ज्यादा उनको जो ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है, वैसे स्टोरीज को लेके आया जाए, वैसे कुछ कंटेंट को लेके आया जाए। तो पर्पस रिसर्च इंटरव्यू का लाइट टू हार्ट के बाद ये जरूरी है कि आपका इंटरव्यू का ऑडियंस कौन है, किसके लिए इंटरव्यू बना रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली, उस ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे। उनका इंटरेस्ट अगर क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या पसंद कर सकते हैं, उनको क्या क्या देखना पसंद करेंगे, तो वैसे सवाल हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अनिकेत का इंटरव्यू लिया, मैंने बताया कि मैं लव स्टोरी भी बताऊंगा अनिकेत के, तो आपका भी इंटरेस्ट जम जाएगा। अनिकेत के आप फ्रेंड्स हैं या अनिकेत को अगर आप जानते हैं मान लो, तो आपको लगेगा यार अनिकेत की गर्लफ्रेंड है सच में क्या, अच्छा कितनी गर्लफ्रेंड है, इतनी है क्या, अच्छा, मतलब आप बड़े इंटरेस्टिंगली देखेंगे उसको। जैसे मैंने अनिकेत, तो मैं बात आप लोग जानते हैं इसलिए बात करता हूँ अनिकेत के बारे में। मैं शाहरुख खान की बात कर लेता हूँ। अगर आपका शाहरुख खान के यंग जनरेशन में आपके लेवल पे चले जाए और उसकी स्टोरी इंटरव्यू आपको देखने को मिले कि शाहरुख खान ने कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या किया, कैसे अचीव किया, या क्या किया, तो वो आप माइट बी गेट अट्रैक्शन आउट ऑफ इट रेटिंग इट। नॉट ओनली लव स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर अलग सेट ऑफ यंग ऑडियंस। एक यंग ऑडियंस ये भी है जो इनोवेशंस पे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए अनिकेत की फिर बात कर लेते हैं, वो एंटरप्रेन्योर है और वो कुछ समाज को देना चाहते हैं और खुद भी कुछ करना चाहते हैं। अब उनके लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो बहुत जरूर पक्का वो इंटरव्यूज वॉच करते होंगे एंटरप्रेन्योर्स के, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ मोटिवेशनल इंटरव्यूज होते हैं जो यंग लोगों को जरूरत होती है, जहाँ पे वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, लाइफ में लैग बिहाइंड फील कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पिछड़ा, कहीं छूट गए, ऐसा फील कर रहे होते हैं। वैसे समय पे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की जरूरत लगती है और आप वैसे इंटरव्यूज देखते हैं। तो जरूरी है ऑडियंस को डिसाइड करना, उसके इंटरेस्ट को फाइंड करना, फिर अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना कि वो फ्रेम क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद फिर आप बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। जैसे मैं अगर लगातार 20 मिनट से बोल रहा हूँ, आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते ज्यादा, और हमारा जो लिसनिंग और वॉचिंग पावर है ना, वो कम हो गया है। इट्स मोर देन 20 मिनट्स ज्यादा नहीं है हमारे पास कैपेसिटी कि हम ज्यादा सुन सके। तो इंटरव्यू 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो उसको फ्रेम में डिवाइड कर लीजिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। मतलब देयर हैज टू बी फन इन योर इंटरव्यू, चाहे वो किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं। इफ इट इज बोरिंग, इट इज वेरी गोइंग सीरियसली, देयर विल बी वेरी फ्यू ऑडियंस विल बी वाचिंग इट।
ज्यादा ऑडियंस आपको वो इंटरव्यू छोड़ के भाग जाएंगे। अब हम स्टोरी टेलिंग पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे बात करेंगे। तो अनिकेत, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? अनिकेत, am I audible? Yes, we're there. Yes. Were you sleeping? No, sir. I thought you might be. Okay, tell me, Aniket. मैंने तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बहुत सारी बातें की। तुम you are a young student, right? You are into class 11. Tell Yes, me, sir. what interests you most? अगर आप किसी का इंटरव्यू दे रहे, किसी की कहानी या लव स्टोरी आपको अट्रैक्ट करती है? No, sir. Means the failures or the struggles उन्होंने क्या किया है उस personality ने, that will motivate me. So. अच्छा, तो आपको वैसे इंटरव्यू ज्यादा पसंद है? Yes, अच्छा, sir. चलिए मुझे बताइए, आप फिल्में कैसी देखते हैं? सर मुझे सर साई-फाई मूवीज और फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स जो है या फिर साई-फाई मूवीज पसंद है सर। चलिए, अनिकेत उन ऑडियंस में से हैं जो खुद को कुछ बेटर करना चाहते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। मैं कोई वॉलंटियर बनना चाहता है, अपने बारे में बात करना चाहता है, कोई जो मेरे सवालों का आंसर देगा? Anyone? प्रिया कहाँ गई? प्रिया चली गई क्या? Oh, she might be here only. प्रिया, are you there? Hello. हेलो। साई कुट कले किटू कले, मुझे लगता है आप कुछ बोलना चाहते हैं? अंबिका, अंबिका, अंबिका सुन रहे हैं आप? हेलो सर। हाँ निकेत बताओ। नो, साई किटुकले कैन आल्सो टॉक। हाँ साई किटकुले, लेकिन वो कुछ बोलने किटकुले या सर दैट वाज एक्सीडेंटली। अच्छा, वो एक्सीडेंटली हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, एक्सीडेंटली होगा तो कोई नहीं, आप फिर से ऑन कर लीजिए अपना ऑडियो। हेलो नितिन आप हैं इधर? यस, नितिन कड़ू। श्रेया नितिन। हाँ नितिन बताइए। नितिन सर व्हाट? हाँ, कैमरा ऑन कीजिए अपना। मुझे लगता है, is there any audio issue? Yeah, नितिन, he on the camera. नितिन मुझे बताइए, आप इंटरव्यू देखते हैं? कभी-कभी देखो। कैसी इंटरव्यूज देखते हैं आप? टीवी पर पर्सनली वीडियो। अच्छा, प्रज्ञा चिनोनकर, उनका हेडफोन को छीन रहा है लगता है। कोई हेडफोन छीन रहा है आपका? प्रज्ञा। यस सर। हाँ, आप बताइए, आपने इंटरव्यू देखा है कोई अब तक? नो सर। कैसी इंटरव्यू पसंद है आपको? सर मैंने देखा नहीं अभी। कैसा इंटरव्यू देखते हैं आप? सर फिल्म स्टार। अच्छा, फिल्म स्टार पे। अच्छा, फिल्म स्टार के इंटरव्यू देखते हैं आप। ठीक है, श्रेया। यस सर। आपने कैमरा ऑन कर सकते हैं? यस सर। आप तो एकदम कॉपी पेन लेके बैठी है एकदम। आर यू वेरी स्टूडियस? नो। अच्छा, ये बताइए श्रेया, आप इंटरव्यूज देखती हैं? हाँ सर, कभी कभी। कैसे इंटरव्यूज देखते हैं आप? किस तरीके के इंटरव्यूज पसंद है आपको?
सर मतलब जो लोग बहुत स्ट्रगल करके आगे आते हैं उनके। अच्छा, मतलब आप भी अनिकेत वाली साइड। फिल्में कैसे देखती हैं? सर वैसे जैसे कॉमेडी। कॉमेडी पसंद है आपको? सही है। थैंक यू श्रेया। अंबिका? अंबिका, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, Ambika, please speak up. Hello, Ambika. हेलो सर। Yeah, hey, yes. या अंबिका बताइए। हेलो अंबिका, आप कौन सी क्लास में? हेलो। हाँ हेलो। कौन सी क्लास में आप? आई एम इन 7th क्लास सर। अच्छा, आप इंटरव्यूज देखते हैं? नो नो सर। किसी का नहीं देखते? कभी कभी देख लेना सर एक आध। किसका? सर एक एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, फिल्में कैसी देखते हैं आप? साईफाई मूवी सर। और ये अनिकेत के कैरेक्टर के लोग हैं आप, बड़े अच्छे हैं हाँ। लोग। मतलब you people are very young and very good. I salute you people that you watch only inspiration motivational films and personal interviews. That's really commendable. तो मतलब मेरा कहना क्या है कि आपका जो सेट ऑफ ऑडियंस समझो, इसलिए आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है क्योंकि आप सीरियस लोग भी हैं थोड़े। तो ऑडियंस को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने सबसे बात किया तो मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा कि मुझे मोटिवेशनल इंटरव्यूज पसंद है, मुझे इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज पसंद है। तो अब क्या होना चाहिए, आपके जैसे ऑडियंस, अगर आपको मान ले कि आपके जैसे ही ऑडियंस के लिए आप इंटरव्यू बना रहे हैं, है ना, जिसको इंटरव्यूज में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियां जाननी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्पिरेशनल लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो आप इंटरव्यू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ऑडियंस जो है वो क्या है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल पर्सन है। तो मुझे बताइए कि आप वो इंसान कैसे लाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या वो इंसान तक पहुंच पाएंगे आप? तो अगर आप सेलिब्रिटी की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे अभी। लेकिन अगर अपने आसपास अगर आप देखें, अपने ग्रैंड माँ, आपकी दादी, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दादा, आपके रिलेटिव्स में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो और फिर बड़े हो। जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे दादा जब मतलब वो यंग थे तो भूकंप आया, अर्थक्वेक उनके जगह पे, तो उनका पूरा घर और सब ध्वस्त हो गया, सब कुछ। तो उनको माइग्रेट होना पड़ा। मतलब मेरे जो परदादा थे, मतलब दादा के दादा जो थे वो कश्मीर में रहते थे। तो वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे कश्मीरियों ने, जो मुस्लिमों ने फिर हम लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया, हिंदूज लोगों पे। तो मेरे जो दादा के दादा थे वो इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद से वहाँ रहने लगे। लेकिन इलाहाबाद में जब वो रह रहे थे तो उनको फिर ढंग का कुछ नहीं मिला, तो अपने रिलेटिव्स रहते थे मुंगेर, बिहार पे एक जगह है मुंगेर, वहाँ पे आ गए वो। और मुंगेर पे उन्होंने फिर उनको प्रॉपर्टी खरीदा उनमें दादा के पापा ने, और वहाँ पे रहने लगे। लेकिन फिर वहाँ भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो मेरे दादा फिर ट्रांसफर हो गया, फिर कहीं और चले गए, एक सिमरी एक जगह है बिहार में, वहाँ आ गए। एंड मेरे दादा के पास कुछ भी नहीं था उस समय। मतलब ही माइग्रेटेड फ्रॉम अ सिटी टू अनदर सिटी, और जो भी था वो भूकंप में चला गया था। तो उस केस में क्या हुआ, उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब ना घर था, ना ढंग के कपड़े थे, ना कोई काम था, और नए शहर में थे। उन्होंने फिर शुरुआत की, कहीं काम ढूंढा, काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे काम से उन्होंने
बैलगाड़ी, मुझे याद है बता रही थी मेरी बुआ लोग, उन्होंने बैलगाड़ी खरीदी, उसमें बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी से वो ना खेत जोता करते थे, थोड़ा खेत की क्या किसी से किराए पे लेके, फिर उन्होंने 8 बैलगाड़ियां खरीद ली थी ऐसे करके, फिर उन्होंने 8 बैलगाड़ियों को बेचा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दुकान खोला, किराने की दुकान, जनरल स्टोर। उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने फिर कपड़े की दुकान खोला। तो कपड़े की दुकान जो पहली बार खोला वो चला नहीं, फिर दूसरी जगह खोला, फिर वो दुकान चलने लगा, फिर उन्होंने शहर में दुकान खरीदा खोला, फिर शहर में घर बनाया, और आज हमारे पास उस शहर में 3 घर है। एंड वी मे कंसिडर अमंग पीपल हु आर थोड़ा अच्छे हैं उस शहर में, तो वी मे बी कंसिडर्ड एज गुड पीपल देयर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पावर एंड पैसा। तो सोचो मेरे दादा के पास कुछ नहीं था, मेरे पास थोड़ा कुछ है, मतलब गेटिंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू मी व्हिच आई एम टेकिंग फ्रॉम माय एंसेस्ट्रल, माय पेरेंट्स। तो वो जर्नी देखिए कितने इंस्पिरेशन है कि मेरे दादा ने जो मेहनत किया या जो स्ट्रगल किया, वो सच में मतलब कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने घर बना लिए, उनके रहते ही 3 शहर में हमारे घर थे, 3 अलग अलग शहर, बनारस में भी वी बॉट अ होम नाउ। तो from nothing we have lot of things now that can only be possible because of his hard work, dedication and commitment. ये स्टोरी इंस्पायरिंग हो सकती है। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आपके घर के आसपास, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत किया है, उसके बाद आगे बढ़े हैं। हो सकता है वो चाय बेचने वाला हो सकता है वो समोसे बनाने वाला हो सकता है वो आपके घर में मेड जो आती है वो हो, क्योंकि वो मेड की भी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल हो सकती है। वो सोचिए घर में अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास आती है, आपको हेल्प करती है, आपके घर में सारे काम धाम करती है। हो सकता है उसके बच्चे भूखे रहते हो उस समय तक, जब तक वो घर नहीं जाती है, घर में जाके खाना नहीं बनाती है। तो what should be your purpose now for the competition of yours? Look for an inspirational story in your area, in your surrounding, in your relatives, at your home. अपने खुद के घर में देखिए, खुद के रिलेटिव्स को देखिए और पता कीजिए उनकी जर्नी कैसी रही है, उन्होंने जीवन में क्या किया है, कैसे किया, कहां से कहां तक पहुंचे। और ऐसा कोई सक्सेस मिल जाए तो उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए। कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसका इंटरव्यू? पूछिए, आप बताइए अपनी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसने आपको रोकने का प्रयास किया। आप बताइए आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, क्या लगता था आपको? क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि बिजनेस डूब जाएगा? इस बिजनेस को करते समय आपने क्या क्या स्ट्रगल फेसेस किए, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या माइलस्टोन मिला आपको? तो इस तरह के इंटरव्यूज में आप जब करेंगे ना, थोड़ा फ्रेम आउट करेंगे, तो आपके लोगों को ऑडियंस आपका ऑडियंस जो है, खास करके जो यंग ऑडियंस जो आपके साथ बैठा है, ये जो आपके सराउंडिंग में हो सकता है, वो मोटिवेशनल इंटरव्यू की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड हो सकता है। तो आपके इंटरव्यू में ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसा कुछ कंटेंट है तो वो हो सकता है। वो 20 मिनट का ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो फन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सवाल बोले जा रहा हूँ और वो आंसर कर रहे बोरिंग है, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कहानी सुनाता हूँ, छोड़िए, आखिरी कहानी होगी मेरी और मुझे लगता है आप लोग एंजॉय करेंगे। 24 जुलाई की बात है, 24 जुलाई, जब मेरे दादा 24 जुलाई 1920, उसमें देश जो था ना हमारा आज़ाद नहीं था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, और हमें बहुत कुछ करने की आज़ादी नहीं थी उस समय। मेरे दादा उस समय 20 साल के हुआ करते थे और कुछ करना चाहते थे, ऐसा कुछ जो शायद उनकी आने वाली जनरेशन को ना करना पड़े। वो कमज़ोर थे, वो गरीब थे और वो लाचार थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे और उनके आने वाले बच्चों के बच्चे वो लाचारी महसूस ना करें, वो कमजोरी महसूस ना करें। जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जो उन्होंने झेला है ना, वो ना चले।
कई बार मेरे दादा बिना छत के बारिशों के बीच में रात गुजारी है, ऐसे ही सो गए, ऊपर से पानी नीचे भी पानी, और आपको नींद आ रही हो। और कई बार तो खाने के लिए ना केवल पानी मिला उनको, केवल पानी। अगर मुश्किल से कुछ खाना मिल जाए तो रोटी हुआ करती थी, वो भी सूखी, कोई गलती से अगर दे जाए तो सूखी रोटी पानी में डुबा के, वो सबसे अच्छा खाना हुआ करता था उनका। जैसे हमें कभी मिठाइयाँ मिल जाए, जैसे कभी हमें आइसक्रीम मिल जाए, हमें कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाए, कितना खुशी महसूस करते हैं। मेरे दादा को ना अगर सूखी रोटी और पानी मिल जाए तो उनको लगता था कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आज मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और फिर उसी तरीके से उनके जीवन में कुछ बदलना शुरू हुआ। उनको एक काम मिला, काम के साथ खाना भी मिला। काम था वो दूसरों की दुकान में जाके मुनीमी की काम करेंगे। वो कहानियां, सारे पैसे कितने आए, कहाँ गया, कैसे करे, उसके हिसाब रखेंगे। और हिसाब रखने के लिए उनको क्या मिला उस समय? 10 रुपया महीना। 10 रुपया महीना हो सकता है आज कुछ ना हो, बट हम एक दिन में उसको खत्म कर दें, लेकिन उस समय 10 रुपये बहुत होता था। 10 रुपये महीने के साथ एक टाइम का खाना। मेरे दादा के लिए समझो जैसे दुनिया ही बदल गई हो। कहाँ वो सूखी रोटी और पानी से खुश हो जाया करते थे, अब थाली में सजा खाना मिलता है उनको, सब्जी, रोटी, चावल, दाल और बहुत सारी चीजें, मतलब प्यार, सम्मान। और फिर उन्होंने ऐसे करके 3 साल काम किए और फिर खरीदी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, हाँ, जिसके पास बैल थी और पीछे थी लकड़ी की काठ जो सामान को धोया करती थी। मेरे दादा ने नौकरी छोड़ दी और बैलगाड़ी चलाना शुरू किया। क्या करते थे? लोगों को धोया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और 5 किलोमीटर का 2 रुपया नहीं, 2 रुपये बहुत होता है, उस समय लिया करते थे 2 पैसा 5 किलोमीटर का। और ऐसे से करके उन्होंने 8 बैलगाड़ियां खरीदी थी। तो जब उनको लगा बैलगाड़ियां से हो गया है काम, तो उन्होंने बेच दिया उसको और फिर खरीदी एक दुकान। किसकी? किराने की, जहां बिक रहे थे चावल, दाल, आटा, तेल और सब्जियां भी बेच रहे थे। कैसी लगी कहानी आपको? नाइस वन सर। सच सच बताइए, नाइस नाइस नहीं कर रहा है। अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी सर। वेरी मोटिवेशनल। अच्छा, वेरी मोटिवेशनल। और सर वेरी हार्ड। क्या हुआ? वेरी स्ट्रगल। ही सेड हार्ड वर्किंग। अच्छा, हार्ड वर्किंग, ठीक है। Yes. आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? स्ट्रगल। ऑन क्या क्या बोल? प्लीज ऑन योर कैमरा। तो कहानी आपको कैसी, आपको लगा कि सुनना चाहिए कहानी? ऐसा लग रहा था कि कहानी सुनना चाहिए, मजा आ रहा है? ऐसा लग रहा था आप लोग को? क्या लग रहा था कि सुनना चाहिए कहानी? एक और कहानी सुनाओ। पक्का रेडी है? यस सर। पक्का? अच्छा, यस ये वाली कहानी लव स्टोरी पे सुनाओ या मोटिवेशन पे सुनाओ? सर मोटिवेशन। चलो वोटिंग करते, कितने लोग लव स्टोरी बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा, सब मोटिवेशन सुनना चाहते हैं। क्या बात है। चलिए ठीक है, मोटिवेशन पे कहानी है, लेकिन मैं थोड़ा इमोशन यूज करूंगा। और हाँ हाँ हाँ, राधिका स्वरार हैज जॉइंड। हाँ हाँ, वो कह रहे अच्छी कहानी है।
कहानी में क्या क्या अच्छा लगा आप लोग को? हर्ष का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सर मैंने चेंज किया है। अच्छा, चेंज किया है। एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है हर्ष तुम्हारा? सर मेरी रूम है। तो जो पीछे है वही है ना? नो सर। हाँ, सर मैंने उसको ये किया, चेंज किया, आप देख सके, देखिए हाथ पे मेरे। मुझे देखना है कैसा है बैकग्राउंड आपका। हाँ सर, अभी चेंज नहीं होगा वो। अच्छा, अभी चेंज नहीं हुआ। गौरी का भी बैकग्राउंड अच्छा है। गौरी, बहुत सारी पेंटिंग्स है आपके पीछे बैकग्राउंड पे ना? For me, हाँ हाँ, आपके बैकग्राउंड में। ये सब पेंटिंग्स हैं। श्रेया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू के साथ पिंक। और प्रिया कहाँ गई? प्रिया कहाँ गई? There might be some network issue, I think. हाँ, प्रिया का हेडफोन बहुत अच्छा था। मतलब वैसा हेडफोन मिलता है क्या? अच्छा, अंबिका इज योर ब्रदर, राइट? Yes, sir. हाँ, आई कैन सी हिज फेसेस नाउ। मतलब ये वीडियो में देख रहा था मैं। Yes, yes. अच्छा, तो Actually, कहानी his में name क्या is- क्या अच्छा, Yes, yes. क्या क्या अच्छा लगा आपको? अभी हम लोग कैमरा ऑन करके बात करेंगे ना, क्योंकि वो स्विच ऑफ होने से ना मुझे लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, बताइए क्या क्या अच्छा लगा कहानी में? Yes, सर कैरेक्टर। आप सोचिए, आपने ऐसी व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसको कोई जानता ही नहीं है। आप जानते हैं मेरे दादा को? कभी देखा है मेरे दादा को? नाम सुना है आपने उसका? लेकिन फिर भी आप सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें मोटिवेशन था, क्योंकि उसमें इंस्पिरेशन था, है ना? तो जरूरी नहीं है कि वो शाहरुख खान का ही इंटरव्यू हो, जरूरी नहीं है कि वो आमिर खान का इंटरव्यू हो, अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू हो। वो इंटरव्यू अगर आपका भी है और उसको अच्छे से फ्रेम किया गया है तो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है और लोग सुन सकते हैं, है ना? सुन सकते हैं ना? yes, yes. ठीक है, तो अब हम एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा इमोशन होगा। इट विल बी लव, इट विल बी थोड़ा इंस्पिरेशन, और इट विल बी थोड़ा रोना धोना। ठीक है? इट विल हैव अ सरप्राइजिंग एलिमेंट टू। चलिए, तो शुड आई स्टार्ट? Yes, sir. डोंट ऑफ योर कैमरा सो दैट Yes, sir. फाइन। Yes, yes. चलिए, ये कहानी है उस समय की जब मैं पढ़ता था ना। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख मेरे जैसा ही था, मतलब मेरे जैसा दिखता तो नहीं था लेकिन सोचता मेरी तरह था। वो हर बात पे कुछ होना हो, आयुष तुम सही कर रहे हो, इस बात कह के मेरे को सपोर्ट किया करता था। अगर क्लास में कभी टीचर मुझे खड़े होके ना डांट दिया करे तो शाहरुख सबसे पहले खड़े होकर के मेरे पास आता था और बोलता था, आयुष वो टीचर पागल है यार, उसको थोड़ी पता है, तू चिंता मत क्या कर, तू अच्छा काम कर रहा है। तो वो एक ऐसा शख्स था जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया काम करने के लिए। फिर हम कॉलेज में गए बीटेक करने को। एडमिशन कहाँ लिया? आईआईटी दिल्ली में। लेकिन शाहरुख को एडमिशन नहीं मिली, मुझे मिल गई थी। और मुझे इस बात का दुख था कि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं आएगा। मैंने जब कॉलेज में एंटर किया ना, तो एवरी डे आई मिस शाहरुख। आई वॉज मिसिंग समवन हु यूज्ड टू प्रेज मी। हमेशा मुझे कहना कि आयुष तू अच्छा कर रहा है, तू बेटर कर रहा है। वो कहने वाला कोई नहीं था। अब कॉलेज में जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। ऐसा मानो जैसे मुझे सब्जेक्ट से मुझे कोई प्यार ही नहीं था। और टीचर तो मुझे एलियन लगते थे। कोई टीचर आकर के क्या सिग्मा डाइमा फलाना दिखाना बात करते रहते थे, मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए नहीं क्योंकि शाहरुख ही याद आती थी, इसीलिए कि मुझे अब इस समाज से ना, मतलब इस बीटेक और इस सब्जेक्ट से C++ कंप्यूटर कोडिंग और फलाना चिढ़ हो गई थी।
मुझे कहीं अगर बोले ना पेंटिंग करना है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता। जैसे तैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया, मेरी नौकरी लग गई। नौकरी कहाँ लगी? IBM पे, और मेरा पोस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। इस दौरान मुझे प्यार हुआ, प्यार ऐसे शख्स से जिसने मुझे मेरे सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरे को हेल्प की, पढ़ाया, मेरे को मदद की। लेकिन वो प्यार कौन सा प्यार था? कोडिंग वाला। कोडिंग प्यार ऐसा प्यार था जो मुझे कुछ नया करने के लिए, मतलब अर्लियर मुझे कोडिंग से बहुत नफरत थी। नहीं, मुझे टीचर ने बताया कि इस कोडिंग की वजह से आप लोगों की समस्याओं को समाधान दे सकते हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं और उसको हल्का बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तब से मुझे कोडिंग से प्यार हो गया, ऐसा प्यार कि आप कोडिंग सोते जागते खाते पीते केवल कोडिंग चल रही होती। तो मुझे याद है एक दिन सपने में मुझे याद आ रहा था कि मैं कोडिंग देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है ब्रेन भी हमारा कोडिंग से बात करता है। हम इंस्पिरेशन वाले कोड से अपने ब्रेन को कोड करते हैं कैसा काम करना है और ब्रेन रिएक्ट करता है। मतलब मेरे थॉट पे केवल वही चलता था। IBM में नौकरी लगी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पहले दिन ऑफिस में घुसता हूँ। क्या सुंदर ऑफिस है। घुसते ही गार्ड सैल्यूट करता है और कहता है हाय सर। मैंने बोला हाय, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत बड़ी बड़ी है उनकी और बहुत लंबे चौड़े, जैसे मैं समझो डर गया हूँ देख के। लेकिन हाय बोला तो ठीक है। सामने गया हूँ तो कुछ सीनियर्स मिले, सवाल किया नए हो क्या? मैंने बोला हाँ आज ही ज्वाइन किया है। बोलता ऊपर चले जाओ 3rd फ्लोर पे, और फिर वहां पे लेफ्ट साइड में जो रूम है उसमें चला जाओ। मैं चला गया और जैसे ही, मतलब कई बार लेफ्ट साइड में मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा रूम है, उन्होंने बताया लेफ्ट से 3rd फ्लोर में लेफ्ट जाके जो रूम होगा उसमें चले जाना। मैं चला गया और मैं इतना एक्साइटेड था अपने रूम में जाने के लिए, मतलब अपने चेम्बर में या अपने वर्क प्लेस पे, कि मैंने नाम के प्लेट नहीं पढ़े कि किसका रूम है वो, और सीधा ऐसे धक्का दे दिया। पता चला मैं CEO के चेम्बर में घुस गया और CEO वाज मीटिंग विद हिज ओन कलीग्स। और मैं मुझे पूछते हैं कौन हो भाई, क्या काम है? तो मैंने बोला नहीं ज्वाइनिंग है। तो नीचे जाओ, who did the hell ask you to here? तो I was like sorry I was so excited कि मैंने सीनियर्स पे डिस्ट्रस्ट कर लिया और 3rd फ्लोर पे सीधा दरवाजा खोल दिया था जाके। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, चीजें बदल गई। मैं नीचे आया, वही सीनियर कॉफी पी रहे थे, मुझे कॉफी पिलाया और फिर मुझे बोला देखो वो थोड़ी सी हम मजाक कर रहे थे, लेकिन अभी हम ये कहना चाहते हैं तुम्हें कि तुम्हारा वो रूम है, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और हम तुम्हारे सीनियर हैं। पहला काम ये है कि आज हमने तुम्हारे लाइफ को थोड़ा आसान किया है। कैमरा? यस सर। यस। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोडिंग करनी है और तुम्हारे आज का काम क्या है कि जो तुमने आज ऊपर से नीचे गए ना और किसी और के रूम में चले गए, इस पे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करो कोडिंग के थ्रू कि कोई किसी को गलत मैसेज भी देना तो उनको सही मैसेज मिले। मतलब वी टाइप समथिंग व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड रॉन्ग टू पीपल बट विद इफेक्ट इट शुड गिव अ राइट मैसेज टू पीपल। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाहते हैं वो, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मैंने IBM में थोड़ी ज्वाइन किया है कि मैं ये कोडिंग करूंगा। ठीक है, मैंने वो काम करना शुरू किया। मुझे पास एक प्रॉब्लम था, शाम तक मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था। इसी दौरान 5 साल बीत गए एंड आई बिकेम मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। माय सैलरी वाज गुड, इट वाज हाई पैकेजेस, माय लाइफ वाज गोइंग स्मूथ, आई गॉट मैरिड एंड एस्टैब्लिश्ड। चौबीस मई 2020 शाहरुख का फोन आता है, लगभग अराउंड 6 साल के बाद। शाहरुख को मेरा नंबर कैसे मिला मुझे नहीं पता, लेकिन जब शाहरुख ने बोला कि वो शाहरुख बोल रहा है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। शाहरुख ने फोन किया इतने साल के बाद। और इन दौरान फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं किया, तो मुझे कभी जुड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन शाहरुख को किसी ने मेरा नंबर फेसबुक के थ्रू दिया था। शाहरुख ने बोला कैसा है, और मिस्टर कोडर मैंने सुना है कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैनेजर बन गया, वो भी IBM में। मैंने बोला हाँ, और तू कैसा है? बोलता है मैं तो सब अच्छा हूँ और मेरी शादी हो गई है और मैं तेरे शहर में आया हूँ।
तेरे शहर में शिफ्ट हो गया हूँ। तो मेरे शहर में मतलब, अरे तेरे शहर का मतलब मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि शाहरुख आ गया है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इन टू स्कूल डेज ऑफ माइन, और बहुत दिनों की बाद मुलाकात होगी। तो फिर हम बहुत खुश हुए, उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। मैं गुलदस्ते लेके पहुंचा फ्लावर्स का, और गेट पे नॉक किया है तो गेट खुला। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का मीना मुझसे पूछी कि आप कौन है, बोलता है नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा आई डोंट नो कौन है आप। उसने मेरी उंगली को पकड़ा और खींचते अंदर ले आया, क्योंकि वो मेरी सारे फोटोज देख चुका था। उसको शाहरुख ने बता दिया था कि देखो ये आयुष है, ये यहाँ रहता है, ये ऐसा दिखता है। और शाहरुख मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो किया करता था। शाहरुख की वाइफ आई और उन्होंने मुझे नमस्ते किया, बोला भैया आपकी कहानियां पढ़ के हम बहुत पक जाते हैं, कई बार ये सुनाते हैं बहुत सारी कहानियां आपकी। और उस शाहरुख के बेटे ने, उसका नाम हेमंत था, उसने मुझे घर पे अपने रूम में लेके गया। वो बता रहा है, वो हाथी देख रहे हैं आप, वो हाथी मुझे ना उस वाले चाचा ने दी थी। वो छोटी वाली जो वो है ना घोड़ी वाली गाड़ी, वो मैंने कल मेले में खरीदी है। मैंने आपके लिए भी कुछ खरीदा है, मेरे लिए भी कुछ खरीदा है। हाँ, अभी पता चला शाहरुख की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो सेकंड बेबी को देने वाली है, और टाइम अभी भी आने वाला है। आई फेल्ट ऑसम, ही सेटल्ड। डिनर किया, मेरे लिए गाजर का हलवा बना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना बहुत अच्छा बना था। फिर हमने बहुत सारी बातें की, मैं घर आ गया। 5 दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, शाहरुख भी मुझे कॉल बैक नहीं कर पाया। 5वें दिन, सो ऑन मंडे और सैटरडे आई होप, ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, आई नीड 50,000 रुपीज इफ यू कैन गिव इट टू मी। मैंने बोला 50,000 रुपए क्यों चाहिए? तो उसने बोला मुझे कुछ काम करना है। वो घबराया लग रहा था, डरा सा लग रहा था। मैंने क्या बात है बताओ? बोलते हैं अगर तू 5,000 दे सकता है तो मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी रिवील नहीं किया। नहीं, मुझे लग रहा था कुछ बात है। मैं बोला तू कहाँ पे है अभी, तू बता, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, पैसे की बहुत बड़ी बात नहीं, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने पैसे ट्रांसफर किए और मैं उससे बहुत प्रेस किया कि बताओ कहाँ है। उसने मुझे बताया नहीं। मैं उसके घर गया, घर लॉक था। मैंने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ है। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दूध वाला मिला मुझे। मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि उनकी बीवी बहुत सीरियस है और वो हॉस्पिटल में है। मैंने बोला अभी 5 दिन पहले मैं मिलके गया हूँ, कुछ नहीं था उनको। बोलते वो, मैंने बताया आपको कौन सा हॉस्पिटल है? बोला मुझे नहीं पता कौन सा हॉस्पिटल है। मैंने गुड़गांव और दिल्ली के सारे हॉस्पिटल छान मारे, सब जगह ये पता करने को कौन से हॉस्पिटल में वो है। सुबह 10 बजे से शुरुआत की मैंने और शाम के 7 बजे, तब तक मैं 50 हॉस्पिटल घूम चुका था और अब हार चुका था। शायद मुझे नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ है। शाहरुख का फोन स्विच ऑफ है, अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं थक चुका हूं और मैं क्या करूं। जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूं, एक हॉस्पिटल मुझे सामने दिखता है। मैंने बोला वो आखिरी उम्मीद है। देखता हूँ शाहरुख हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रहा है। मैं अंदर जाता हूँ, शाहरुख को थप्पड़ लगाता हूँ। मुझे गुस्सा था बहुत। वो जोर का थप्पड़ नहीं था, वो इमोशनल थप्पड़ था। मैंने बोला क्या हुआ? केवल पैसे के लिए याद करेगा कि मैं साथ आ सकता हूँ तेरे? वो कुछ कहा नहीं, उसने रोने लगा। वो उसने मेरे कंधे को पकड़ा और बहुत रोने लगा। I was break down that time. I was crying. I had asked him what happened. He took me to the second floor, room number 73. His 2-year child, Hemant, was sitting outside a chair and confused what is happened. I entered the room. Shahruk's wife was crying. The child who was in her stomach was dead. They lost their new baby. And I was helpless that time.
what to reply, how to help. I asked, take care, we are there. Came outside, sat with a guy, small 2-year-old guy, Hemant. अब मैं सोच रहा हूँ, वो कल बोल रहा था चाचा मैं उसके लिए खिलौने लेके आया हूँ, चाचा जो मेरे यहाँ बाबू आने वाला है ना, मैं उसके लिए ये सारे खिलौने इकट्ठे कर रहा हूँ. What should I tell him? What should शाहरुख tell him? जिसके लिए उसने इतनी प्रिपरेशन की है, जितने खिलौने खरीदे हैं, वो अब नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं. वो 2 साल का बच्चा कितना समझेगा? The story end. Did you like the story? Yes, sir. What all you liked? Yes, sir. Seriously? Let me tell you, the story was fake. I have just created a story to have you to listen. The story was fake. I have a friend called Shahrukh, but we met in like in masters of mine, and I'm not married now, nor he married. We are too young to get married, so we do not have kids and we are not having wives. So, but story was fake. But Shahrukh character was real. Only Shahrukh character was real, and I was there. But I'm not working into coding and all. I'm not into software. I'm into communication. I did journalism from Delhi University. The story was something to speak over. It's all about emotions, love, and the hard work which we all do. Right? So, story has a power to make you listen, to make you cry, and to let you down with all of sort of feelings, right? That has a part of story, especially with when you call it emotions. When we call it to a friendship, when we call it to a love of someone, when we call it to strong bonding with our parents, our family members, that's very important. So if your interview is in such a way, if it's framed in such an idea, such a style, such with an emotion, full of emotions, people would be interesting, irrespective of the characters. कौन है उसमें, वो कितना बड़ा शख्सियत है, फिर आपने उसकी स्टोरी को अच्छे से इंटरव्यू किया है और अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो लोग आपके इंटरव्यूज को देखेंगे. तो मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड कर रहा हूँ. अगर आपके पास कोई सवाल है, feel free to ask. I'm ready to answer it. If you have any questions. Anyone have question? You can ask. आप पूछ सकते हो सर से. किसी के पास कोई सवाल? Anyone has any questions? Sir, Yes. sir, you have told that you have to make the interview video of 5 minutes. अच्छा. So how to arrange all the questions in 5 minutes? हाँ, what is important श्रेया, कि जरूरत नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन पूछ लें 5 मिनट में. जरूरी क्या है कि 5 मिनट में आप इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बना दें और उसमें कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन और कुछ स्ट्रगल आ जाए. जैसे आपने देखिए, मैंने जो कहानी सुनाई है वो 5 मिनट से ज्यादा की नहीं है. कोई भी कहानी जो मैंने सुनाई है, तो 5 मिनट इज एनफ. हमें 5 मिनट में बहुत कुछ बता दिया आपको. सोचिए, मैंने अपने जॉब के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने दोस्ती के बारे में, उसके लव रिलेशंस के बारे में, उसके बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया. तो 5 मिनट इज वेरी इनफ. इट्स डिपेंड कि आप उसको कैसे फ्रेम कर रहे हैं, उसको कितना इम्पोर्टेंटली आप सवाल हैं आपके, तो इस सब चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं. Okay, sir. और सवाल? थैंक यू श्रेया. और कोई सवाल है किसी के पास? Yes, anyone? और वीडियो 5 मिनट का ही होगा तो चलेगा, फिर उसको एक्सटेंड किया तो चलेगा 10 मिनट तक. ये तो अनिकेत. Yeah. You can extend up to 6 minutes also. 6 to 6:30 minutes.
हेलो, Yes, yes. और कोई सवाल है? Well, sir, I don't have any kind of question, but really thank you so much that you have given time to us. It's really a great session. And I just want to say something that the Infosys Foundation, which is founded by the Aniket and her father, is really great. Because of them, we are unable to do that what we want to. Because as we know, there are so many school loads, there are studies and all those things, and we just neglect the activities. But they are just focusing on that. Like interview is really a great thing, and it's like we can make career in it, right? So I was so excited to make the video. As that now that girl said that we have to do video in just 5 minutes, right? And we have to take the videos of our like grandparents or grandmother or any like teacher and any famous personality. So when we are taking particular video of the grandfather or grandmother, then it's really hard to complete in 5 minutes. It's really hard to complete in 5 minutes, as they are going to say in deep way the questions which you are going to arrange over there and what kind of life experience they are going to say. So yeah, it's really tasky, but yeah, it's a competition and we have to win that. So I will try best for that. I would like to can you switch on the camera, Reshmukh, of yours? Sir, I'm sorry because my class is there. I have so many classes, so it will be exhausted. That's why I'm not on my camera. Okay, let me answer it. When we interview any personality, anyone, like you want to interview your current patterns, anyone, I know they will answer lot of things when they will answering it. लेकिन आपको ये करना है कि आपको जरूरत नहीं है कि वो जितना बोल रहे सब दिखाइए, आप उसको कट कीजिए. Yes, right. जो इम्पोर्टेंट है, जो इमोशनल है, जो अच्छा है, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, अवेयर करेगा, इंस्पायर करेगा, केवल वही कंटेंट होना चाहिए. इसीलिए हम इंटरव्यू की बात करते हैं ना, तो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इंटरव्यू, इसकी भी बात करते हैं. प्री प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? डिजाइनिंग द क्या हमारा बैकग्राउंड होगा. देखिए, आपने मुझे देखा होगा तो मैंने आपके बैकग्राउंड की बात की है ना. आपने कैमरा को ऑन क्यों करवाया? मैंने आपके बैकग्राउंड की तारीफ की है. आपके इंटरव्यूज में ना हमारा कैमरा केवल आपके कैरेक्टर्स पे नहीं जाता है, आपके बैकग्राउंड पे भी जाता है. Yes, exactly. तो प्री प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? कैमरा सेटअप क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी, क्वेश्चन कैसे होंगे, कौन गेस्ट होगा, टाइमिंग क्या होगी, राइट? ये सब कुछ डिसाइड करते हैं, है ना. फिर जब इंटरव्यू हो रहा होता है, exactly. बेसिस पे हो रहा होता है. इस पोस्ट प्रोडक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं जितना उन्होंने बोला है, क्या बकवास है, किसको हटाना है, किसको रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है, हम डिसाइड करते हैं. दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन. एंड उसके बाद वो फाइनल वो हमें बना जाता है. तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो 1 घंटे का इंटरव्यू देखते हैं, आधे घंटे का इंटरव्यू देखते हैं, वो एक्चुअल में 2-3 घंटे का होता है, लेकिन उसको आधे घंटे का बनाया जाता है ताकि वो ऑडियंस को उतने ही पॉइंट मिले जो उनको सुनना है ना. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. आप बात आधे घंटे कीजिए उनसे, अपने पेरेंट्स से, जिनका भी इंटरव्यू आप ले रहे हैं. आप 1 घंटे बात कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन उन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए 5 मिनट में जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टोरी टेलिंग. हाँ हर्ष, वीडियो ऑन कर लो थोड़ा, अगर कर सकते हो तो. हाँ यस सर. जैसे अभी आपने स्टोरी एक्सप्लेन की बहुत अच्छे से. तो अगर हम करते हैं, अगर कुछ ऐसे टाइप की स्टोरी, तो हम उसको उस तरीके से इंटरेस्टिंग लेवल पे लेके नहीं जा सकते. बहुत बार हम ट्राई करते हैं, खुद की कुछ बताते हैं, पर जैसे आपने अभी एक्सप्लेन करके बताया, आपने सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी को काइंड ऑफ लॉन्ग करके मतलब कि काफी डीप में आप लेके गए. तो वही हम पैटर्न कैसे करें हमारी अगर कोई नॉर्मल स्टोरी भी रही उसमें? अब ये मेरा स्किल है, मैं इस पे एक सेशन हुआ अनिकेत से, हम प्लान कर सकते हैं एक सेशन केवल स्टोरी टेलिंग पे कर ले, ताकि हम उस पर डेप्थ पे बात करें. लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. देखिए, हम ना एक बात का ध्यान रखते हैं कि स्टोरी में इमोशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जो लोगों को इंटरेस्ट करे. इमोशंस में भी इंडियन पीपल, हम भारतीय लोग हैं, हमें इमोशन में बहुत मजा आता है. तो अगर इमोशनल सीन है तो हमें उस चीज को सुनने में, देखने में मजा आता है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर इंस्टेंस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें, कुछ इमोशंस क्रिएट करें और उसको चेंज करते रहे. थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होने चाहिए. मतलब
वो स्टोरी में ये 3 चीज होने से ना आपको बोरिंग नहीं लगता है। और स्टोरी इज नॉट ओनली टू लेट यू लिसन और अवेयर एंड इंस्पायर, ऑल्सो टू बाइंड यू स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं हर मिनट पे एक ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट आए जो आपको मजबूर करे कि नेक्स्ट की कहानी और सुने क्या है। जैसे मैं आपको बताता, अगर मैं बोलता मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, मैंने शाहरुख को देखा, शाहरुख रो रहा था, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैं भी रोने लगा, कहानी खत्म। आप बोलता नहीं भाई क्या हुआ, आगे बताइए मुझे, नहीं प्लीज मुझे बताइए आगे क्या हुआ। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। आप सोचिए, आपको नींद ही नहीं आती, आप सोचते क्या हो सकता है कहानी, मतलब क्या होगा, क्यों रो रहा था शाहरुख, हॉस्पिटल क्यों गया शाहरुख, समझ रहे हैं आप? मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आप लोग बहुत छोटे हैं अभी। तो कभी स्टोरी टेलिंग पे सेशन में करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस पर बात करूं। अभी इट्स 1, तो आई नीड टू लीव फॉर अनदर मीटिंग, तो I would have taken time, but I feel like I will take another session for it. And thank you for us asking questions. Storytelling is one of the skills which we all can develop and will help people. And in future, hopefully जब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर मुंबई जहाँ भी आप रहते हैं लेकिन वो फिजिकल वर्क प्लान्स की cities में students can do it remote. Students can have इंटरव्यू स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू स्किल्स में एक चीज होता है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू को बायसनेस के साथ मत कीजिए कि आप ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, छोड़िए, आप उसको सुनिए वो क्या बोलना चाहते हैं। आपका बायसनेस नहीं होना चाहिए कि आप बीजेपी माइंडेड है, कांग्रेस माइंडेड है, आप किसी पार्टी माइंडेड है, या आप नेशनलिस्ट है, सोशलिस्ट है। आप अपनी आइडियोलॉजी को अलग हटा के सवाल पूछिए, अपनी विचारधारा को अलग, आप इंटरप्रेट मत कीजिए उसको। दूसरा क्या होता है इंटरव्यू स्किल्स में, क्यूरियोसिटी शुड बी देयर। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरव्यूज का जरूरी नहीं है कि आप प्राइज जीतेंगे या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इम्पोर्टेंटली लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, इफ यू आर लुकिंग आफ्टर योर आइडिया, राइट, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप इन योर लाइफ, इन योर टाइम विच यू आर डूइंग इट, उसमें अगर ये सवाल हैं हु, वेयर, व्हाट, कैसे, क्या, तो आप उस सवालों के माध्यम से खुद को बेटर कर सकते हैं, खुद को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप खुद से पूछें इसमें आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मिलेगा इससे आपको, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, इंटरव्यू का कंटेंट शुड बी नॉट इनटू अ लैंग्वेज विच पीपल मे नॉट लाइक। गालियां नहीं होनी चाहिए, अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, किसी को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का नहीं होना चाहिए, आप किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए आपने किसी धर्म के खिलाफ बातें करवा दी, किसी से, कोई किसी धर्म के खिलाफ बोले जा रहा है, किसी के सेंटिमेंट के खिलाफ बोल रहा है, किसी के इमोशन के खिलाफ बोल रहा है, वो ऐसे इंटरव्यूज को वी शुड नॉट सपोर्ट एंड प्रमोट एंड मोटिवेट बूस्ट, क्योंकि इससे समाज का नुकसान है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि आप जब इंटरव्यू लें तो उसमें किसी भी धर्म, जाति, समाज के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो कोई सवाल है तो आप मुझे अनिकेत के थ्रू भेज सकते हैं, आई वुड हैप्पी टू आंसर इट। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, गूगल में जाके आयुष केसरी सर्च कीजिए, अगर इफ यू फाइंड माय लिंक गेट अ रिव्यू देयर कि आपका कैसा सेशन लगा आपको, मतलब गूगल पे लिखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो शेयर अ व्हाट्सएप लिंक टू अनिकेत कि आपको शेयर कर दें ताकि आप सेशन का रिव्यू उधर दे दे, फीडबैक, मतलब कैसा लगा सेशन में, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। अभी मैं 3 लोगों से सुनना चाहता हूँ, वो भी 3 लोग इंक्लूडिंग वन अनिकेत, 2 लोग और जो वॉलंटियरिंग मुझे बताना चाहेंगे कि आपको आज सेशन कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला, और how are you feeling now after having an session. So let's start with someone Aniket से start कर लेते हैं, and then 2 लोग कोई भी आ जाए। Yes, Aniket, don't praise it, be very genuine, very cool, right? तो सही है वो बताओ, मतलब सही स्टेट बताओ। Yes. First of all, sir, thank you, sir, for your time and support as you आपने इतना हमें गाइड किया।
सो आज के सेशन में सर मैंने ये बात सीखी कि दैट आपने अभी कहा कि इंटरव्यू सिर्फ हमें कंपटीशन तक, इंटरव्यू स्किल कंपटीशन तक मत लिमिट रखिए, ये आपके लाइफ में आगे चल के आपको काम आएगा. सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई लर्न फ्रॉम इट. एंड सेकंड पॉइंट दैट वाज दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर ऑडियंस. ऑडियंस हमें अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू जो है हमें सिलेक्ट करना है. इमोशनल स्टोरी है या फिर मोटिवेशनल है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, सो these were the things which was I liked from this session, and your story was so much good. Actually we are connected emotionally, we are connected to that story. So that was what I learned and of interview. Anyone else would like to volunteer for the feedback? कोई और बोलना चाहता है? Is anyone there who want to किसी बात? ठीक है. Yeah, okay. Yeah, so I would like to thank each one of you for being here. और मैं सच में आप लोग मैंने कोशिश बहुत की है हिंदी में बोलने की. एक्चुअली मतलब होता है ना, मैं पूरा काम इंग्लिश में करता हूँ तो मुझे हिंदी में आने में थोड़ा सोचता. तो आई नो लैंग्वेज और बेटर मैंने 2-3 बार बोला हिंदी में करने का प्रयास किया. तो आई वुड लाइक टू थैंक आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने यार ये सेशन अटेंड किया और मुझे सुना, और आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया स्टोरी आप लेके आए, कुछ नया इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप. और मैं अनिकेत और अनिकेत की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी यंग एज पे इतना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और इतना सेटल है, इतना प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं. और प्रशांत सर को इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अनिकेत से कनेक्ट किया, और ही इज़ अ फादर. आई कैन सी द मोटिवेशन ही इज ब्रिंगिंग इनसाइड यू एंड इंस्पिरेशन ही इज डूइंग फॉर यू, राइट? So if we have father like Prashant sir, each one of us, I also have, so our life would be more easier. जो आपके विजन को सपोर्ट करने के लिए, आपके आइडियाज को हेल्प करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. तो I salute you sir for your work, the kind dedication which you are putting for your son, helping them to achieve what they would like to, and all of you who always to participants here, I'm looking forward for your own interviews, videos, if I get to watch how you conducted this interview. Last, my suggestion, and I'll end my session here, that there has to be something new into your interview, which should interest people to watch. Remember it. It should have a story. Your interview should have a story. Might be a village story, might be a struggle story, might be a story of their own generation, language, religion, anything. But there has to be a story and there has to be unique. Make sure that your interview story should be unique, right? So that it can interest the audience to watch. It should interest people to give the feedback or watch it beautiful, and should confuse the judging panel to choose one. So I wish you all the best for the competition. Thank you, all the best. Stay blessed, stay happy. Thank you for joining us. Thank you sir, thank you. Thank you. So should I leave now? Yeah sir, yes sir, we can end the meeting, and thank you for your support. Means our team has our team has so much doing work for his hard work for this competition, and your support motivated us to do more work, and thank you for your मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और मैं फिर से माफी चाहता हूँ मैं आज बहुत लेट आया हूँ, but I feel like I'm really very happy and I've made you something to learn. So all the best. Thank you guys. Thank you sir, thank you.